اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو فوج کی عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے۔ یہ دستہ جم کر نہیں گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قیصاریہ میں ہرقل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بڑا بیٹا قسطنطین ہے۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ ان میں موجود تھے اور خالد رضی اللہ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر لیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حلہ اس طرح ضائع ہو جاتا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر کے بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ میں خالد ابن ولید ہوں لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے نعرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ مارکا ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ نہ ہوئے بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اتنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں کے بعد آگے آیا لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ
जिसकी लंबाई 18 मील थी और गहराई भी खासी ज्यादा थी। सफों के पीछे सफें थीं। रूमी लश्कर के सालार आला माहान ने आगे आकर मुसलमानों की फौज का जायजा लिया। उसे अपनी जंगी ताकत पर इतना नाज था कि वो मुसलमानों की सफों के करीब आ गया। उसके चेहरे पर रौनक और होंठों पर तंसिया मुस्कुराहट थी। मुसलमान उसे खामोशी से देखते रहे और वो मुसलमानों को हकारत से देखता आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे 12 मुहाफिज घोड़ों पर बड़ी शान से जा रहे थे। महान ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसके लश्कर की तरफ से एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता आया। महान रुक गया। घुड़सवार उसके करीब आ रुका और रूमी अंदाज से सलाम करके उसके हाथ में कुछ दिया। ये हरकल का पैगाम था जो उसने महान को अंताकिया से भेजा था। ये दरअसल पैगाम नहीं, शहनशाह हरकल का फरमान था। हरकल ने उसे लिखा था कि मुसलमानों पर हमला करने से पहले उन्हें सुलहनामे के लिए राजी करो। मुसलमान अगर ये शर्त मान लें कि वो पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे और आइंदा कभी रूमी सल्तनत की सरहद में दाखिल नहीं होंगे तो उन्हें इज्जत से और कुछ रकम देकर रुखसत करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वो सुलह पर राजी हो जाएं। अगर वो तुम्हारी बात न माने तो अरबी ईसाइयों को इस्तेमाल करो, शायद उनकी बात मान जाएं। महान ने ये पैगाम पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। उसने कासिद को रुखसत कर दिया। उसने गुस्से से कहा, इन बद्दुओं के आगे घुटने ही टेकने थे तो इतना लश्कर इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी। उसने पीछे देखा। उसका एहतजाज सुनने वाले उसके मुहाफिज ही थे। उसने मुसलमानों के महाज की तरफ देखा और घोड़े का रुख उस तरफ करके आगे आ गया। करीब जाकर उसने घोड़ा रोक लिया और एक मुहाफिज को अपने पास बुलाया। उसने अपने मुहाफिज से कहा, इन्हें कहो कि अपने सालार आला को सामने करें और कहो कि हमारे सालार आला महान सुलह की बात करने आए हैं। मुहाफिज ने उसके अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए। मुसलमानों की तरफ से जवाब आया कि आते हैं। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों के हाथों हरकल की आधी फौज कट गई थी। बेअंदाज माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा था और मुसलमानों ने सल्तनत रूम के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर हरकल ने उन्हें बख्श क्यों दिया? उसने 1.5-2 लाख फौज इकट्ठी करके भी मुसलमानों के आगे सुलह का हाथ क्यों बढ़ाया? फौरी तौर पर ये जवाब सामने आता है कि उसकी फौज पर मुसलमानों की जो दहशत तारी थी उससे वो खतरा महसूस करता था कि उसकी इतनी बड़ी फौज भी शिकस्त खा जाएगी। लेकिन उस वक्त के वाक़े निगारों, मौर्रिखों और बाद के तारीख नवीसों ने मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि हरकल ओछा दुश्मन नहीं था। वो जंगजू था और जंगजू कौम की कदर करता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत से वो मुतासिर था। वो नहीं चाहता था कि एक जंगजू कौम की इतनी पुरअज़म फौज उसके लश्कर के हाथों खत्म हो जाए। वो मुसलमानों को जिंदा वापस चले जाने का मौका दे रहा था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों ने जज्बे के जोर पर उसके लश्कर से टक्कर ली तो मुसलमानों का कत्लेआम होगा। हरकल ने जो कुछ भी सोचा था उसके मुताल्लिक आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मुसलमानों की सोच मुख्तलिफ थी। मैदान जंग में न वो रहम करते थे न रहम के तलबगार होते थे। अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की कई गुना ज्यादा ताकत ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया था। रूमी सालार माहान की पुकार पर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे गए। उनके साथ एक तर्जुमान था। माहान ने बारूब लहजे में पूछा, ऐ सालार, क्या तू अमनो अमान से यहाँ से चले जाना चाहता है? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम अमनो अमान चाहते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते। महान ने कहा, शहनशाह हरकल के हुक्म की तामील लाजमी है, इसी के हुक्म से मैं तेरे पास आया हूँ। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन मेरे रूमी दोस्त, हम पर सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील लाजमी है। महान ने कहा, शहनशाह हरकल तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। अपनी इस जरा सी फौज से मेरी फौज के साथ टक्कर लेने से बाज आ जाओ। मैं अपने एक सालार को सुलह की बातचीत के लिए भेज रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। रूमी फौज का जो सालार सुलह की बातचीत करने आया वो ग्रेगरी था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका इस्तकबाल किया। ग्रेगरी ने कहा, मैं शहनशाह हरकल की तरफ से सुलह की पेशकश लेकर आया हूँ। अगर तुम वापस चले जाओ और फिर कभी इधर न आने का मुआहिदा कर लो तो हमारे शहरों और कस्बों से जो माल गनीमत वगैरह उठाया है वो अपने साथ ले जा सकते हो। हमारा लश्कर देख लो और अपनी तादाद देख लो। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये लड़ाई मेरी जाती होती तो मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेता। मैं शहनशाह नहीं, शहनशाह अल्लाह है और हम उसी के हुक्म पर आए हैं। हम कोई पेशकश कबूल नहीं कर सकते। ग्रेगरी चला गया। हरकल ने अपने फरमान में लिखा था कि सुलह का जरिया इस्तेमाल करो। उसके हुक्म के मुताबिक महान ने एक और सालार जबला बिन अल अहम को भेजा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम्हारी फौज के तमाम सालार बारी बारी सुलह का पैगाम लेकर आएंगे? क्या कोई मेरे इनकार को इकरार में बदल सकता है? जबला ने कहा, सुलह का पैगाम लाने वाला मैं आखिरी सालार हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं भी अरबी हूँ तो ईसाई, लेकिन मेरे दिल में अपने वतन के लोगों की मोहब्बत है। मैं तुम्हें तबाही से बचाने आया हूँ। तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है तो वो बता दो, मैं वो पूरा कर दूंगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारा मुतालबा तुम जानते हो।
हम खैरात नहीं जिजिया लेंगे। जबला ने हैरान होकर कहा, ए अरबी सालार, क्या 40,000 की फौज 4 गुना ताकतवर लश्कर से जिजिया वसूल कर सकती है? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ की और उनके होंठों पर तबस्सुम आ गया। उन्होंने रूमियों की हर पेशकश ठुकरा दी और सुलह से इनकार कर दिया। जुलाई 636 ईस्वी जमादियुल आखिर 15 हिजरी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। जबला बिन अल अहम ने अपने सालार आला माहान को जाकर बताया कि मुसलमान किसी कीमत पर, किसी शर्त पर सुलह के लिए तैयार नहीं है। माहान ने कहा, हम शहनशाह हरकल के हुक्म की तामील कर चुके हैं, मैंने अपने जराए इस्तेमाल कर लिए हैं। जबला, अब वो तरीका इख्तियार करो जो शहनशाह हरकल को पसंद नहीं। इन बदकिस्मत और कम अकल मुसलमानों पर हमला कर दो, इससे इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और हम ये देख लेंगे कि इनमें कितना दमखम है और इनके अंदाज क्या हैं। रूमी लश्कर का पड़ाव कई मील दूर था। जबला अपने दस्तों को लेकर मुसलमानों के सामने आया। उसके दस्तों को रूमी फौज के हथियार दिए गए थे जो बेहतर किस्म के थे। उन दस्तों में अरबी ईसाई थे। वो जब आए तो मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। जबला ने आते ही हमला न किया। वो मुसलमानों के महाज को देखकर हमला करना चाहता था। आखिर उसने हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। वो अभी मुसलमानों की अगली सफ तक पहुंचा भी नहीं था कि उसके दस्तों के दोनों पहलुओं पर हमला हो गया। हमला करने वाला मुसलमान सवारों का दस्ता था जिसकी कमान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। घूम फिर कर लड़ने वाले इस दस्ते ने अपना मखसूस अंदाज इख्तियार किया। जबला की तरतीब गड़बड़ हो गई। उस पर सामने से भी हमला हुआ। ईसाई बौखला गए। उन्हें अपने पहलुओं पर हमले की तवक्को नहीं थी। मुसलमान सवारों ने उन्हें बखेर दिया। ईसाई अब भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो बहुत सी लाशें और बेअंदाज जख्मी पीछे फेंक कर पसपा हो गए। मौरिख लिखते हैं कि माहान ने मुसलमानों को लड़ते भी देखा और जिस तेजी से मुसलमान सवारों ने जबला के दस्तों पर हमला किया था वो भी देखा और वो समझ गया कि मुसलमानों से लड़ना बहुत मुश्किल है और इसके लिए मजीद तैयारी की जरूरत है। माहान ने हमले के लिए कोई और दस्ता न भेजा। माहान को तवक्को थी कि मुसलमान जवाबी हमला करेंगे, लेकिन नफरी की कमी मुसलमानों की मजबूरी थी। वो जवाबी हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उधर जबला मोहतात हो गया। दिन गुजरने लगे। दोनों तरफ की फौजों ने एक दूसरे पर नजर रखने के लिए अपने अपने आदमी मुकर्रर कर दिए। ये वक्फा मुसलमानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें मदीना से 6000 अफराद की कुमक मिल गई। ये 6000 अफराद यमनी थे और ताजा दम थे। उनसे मुसलमानों के महाज को कुछ तकवीयत मिल गई। मुसलमानों की फौज की तफसील कुछ इस तरह थी कि उसकी कुल तादाद 40,000 थी। उनमें 1000 रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम थे। उन 1000 में 100 वो मुजाहिदीन भी शामिल थे जो बदर की लड़ाई लड़े थे। इस नफरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीजाद भाई जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शरीक थे और इस नफरी में पहली जंगों की 2 मशहूर शख्सियतें भी शामिल थीं। अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी हिंद रज़ियल्लाहु अन्हा। अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही 40,000 की इस फौज में शामिल थे और 1 सालार थे। 1 महीना गुजर गया तो दुश्मन ने देखा कि उसका लश्कर लड़ने के लिए तैयार हो गया है और मुसलमानों की नफरी में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, तो उसने मजीद इंतजार मुनासिब न समझा, लेकिन एक बार फिर सुलह की कोशिश को जरूरी समझा। उसने अपना एक एलची मुसलमानों के महाज को इस पैगाम के साथ भेजा कि सलार आला बातचीत के लिए आए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू सुलेमान, क्या अब ये बेहतर नहीं होगा कि इस शख्स के साथ तू बात करे? वो हमें अपनी ताकत से डराकर सुलह करना चाहते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे ही जाना चाहिए अमीनुल उम्मत, उसके साथ मैं ही बात करूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगा दी। माहान नजर नहीं आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ चंद एक मुहाफिज थे। वो रूमियों के महाज तक चले गए। माहान ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने खेमे में ले गया। खेमे में महसूस ही नहीं होता था कि ये मैदान जंग है। ये शाहाना कमरा था। माहान ने अपना तारुफ करवाया। कहा, मैं माहान हूँ, रूमी फौज का सालार आला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। माहान ने कहा, तुम सब कुछ हो इब्न वलीद, जहाँ तक तुम नहीं पहुँच सके वहाँ तक तुम्हारा नाम पहुँच गया है। मेरा ख्याल है कि तुम जितने काबिल हो और जुर्रतमंद सालार हो उतने ही दानिशमंद इंसान भी होगे। तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी 40,000 फौज मेरे उस लश्कर के हाथों मारी जाए जो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई चट्टानों की मानिंद है। दानिशमंद आदमी चट्टानों से नहीं टकराया करते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बहुत अच्छे अल्फाज हैं, मैं इन अल्फाज की कदर करता हूँ, लेकिन हम वो दानिशमंद हैं जो बातिल की चट्टानों से डरा नहीं करते। तुमने मुझे यहाँ तक आने का मौका इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारा लश्कर देख कर डर जाऊं।
महान ने कहा, इब्ने वलीद, क्या तुझे अपने सिपाहियों के बीवी बच्चों का भी कोई ख्याल नहीं जो तेरे लश्कर के साथ हैं? क्या तुमने सोचा नहीं कि अगर तुम सब मारे गए तो ये बीवियां बच्चे हमारी मिल्कियत होंगे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, महान, हम सब कुछ सोच चुके हैं, सुलह नहीं होगी। महान ने कहा, इब्ने वलीद, क्या तुम ये भी नहीं समझ रहे कि मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ? मैं तुम्हें, तुम्हारे लश्कर को और तुम्हारे खलीफा को भी उतनी रकम पेश करूंगा जो तुम सबको हैरान कर देगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रहम करने वाला सिर्फ अल्लाह है जिसके कब्जे में मेरी और तेरी जान है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद और रहम मांगते हैं। अगर तू नहीं चाहता कि कश्तो खून हो तो इस्लाम कबूल कर ले जो अल्लाह का सच्चा दीन है। महान ने बड़े रोब से जवाब दिया, नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मुझे मेरे लश्कर और मेरे खलीफा को इनाम देना है तो जिज़िया अदा कर दे, लेकिन जिज़िया लेकर हम चले नहीं जाएंगे, बल्कि तुझे और हरकल की रियाया की हिफाजत, इज्जत और हर जरूरत के जिम्मेदार होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो मैदान जंग में हमारी तलवारों की मुलाकात होगी। मौरख वाक़िदी बिलाजरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु महान पर अपना बड़ा ही अच्छा तासुर छोड़ाए और महान का जो तासुर लेकर आए वो भी अच्छा था। उसने कोई ऊंची बात न की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस आकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तो ये बताया कि महान के साथ क्या बात हुई है, दूसरे ये कि महान कितना अच्छा और कितना बावकार सिपाह सालार है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर उसमें एक ही खराबी है, उसकी अक्लो दानिश शैतान के कब्जे में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु महान को आखिरी फैसला सुना आए कि सुलह नहीं होगी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम सालारों को इकट्ठा करके बताया कि दुश्मन ने सुलह की पेशकश की थी जो ठुकरा दी गई है और अब लड़ाई नागुजीर हो गई है, और तमाम मुजाहिदीन को ये भी बता दिया जाए कि रूमियों ने हमें अपने लश्कर और अपनी जंगी ताकत से डराया है। मौरख के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और महान की बातचीत की नाकामी के बाद जब दोनों तरफ की फौजों को बताया कि जंग हो के रहेगी और कल सुबह से फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी, उस वक्त से दोनों फौजों पर हैजानी कैफियत तारी हो गई। रूमी महाज पर पादरियों ने लश्कर को सलीबें दिखाकर मजहब के नाम पर गरमाया और उन्हें सलीब और यसू मसीह के नाम पर मर मिटने की तलकीन की। पादरियों के अल्फाज और उनका अंदाज इतना जोशीला था कि सिपाहियों ने सलीब की तरफ हाथ करके हल्फ उठाए कि वो फतह हासिल करेंगे वरना मर जाएंगे। मुसलमानों ने इबादत और दुआ के लिए रात का वक्त मुकर्रर किया। उन्हें गरमाने और जोश दिलाने के लिए वाज की जरूरत नहीं थी। जिस मकसद के लिए वो घरों से निकले थे उस मकसद की अजमत से वो आगाह थे। उन्होंने अपनी जानें अल्लाह के सुपुर्द कर दी थी। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना